Good evening, sir. Good evening, Shruti. How are you? I'm fine, sir. Okay. Congratulations for clearing your UPSC mains. Thank And you. we sincerely hope and we know that you are going to get through the final hurdle as well. Thank you, sir. Okay. Okay, Shruti. You just, tell me the doubts or the queries that you have in your mind related to your death first. Sir, I'm starting with the hobbies doubt. I'm mentioning two hobbies. The first Mhm. one is mandala art, and the second one is undertaking religious tours. Is it fine, or should I rephrase into something else? You are talking about a D part of your point 20, Yes, sir. right? Okay. D part. See, the first one is mandala art, which is a very good hobby. You do it. It's Yes, a sir. genuine hobby. Sometimes. Okay. Sometimes. Yes. But it is your genuine hobby, right? So Yeah. obviously Yes, you sir. can mention it and prepare some of the questions that they might ask you. So, for example, how a person will be able to say a layman that this is a mandala art. What are the features of mandala art? Okay. This kind of very Okay. general question they might ask. Okay. And this particular art belongs to which particular state or community, any linkage, anything Okay. related to that. Okay. And what are the special things that you do in mandala art? Why it is called mandala? What is the meaning of this particular word? All kinds of questions might be asked. So what you need to do, you may write mandala art, but then prepare at least 10, 20 questions that they may ask you related to mandala art. Okay, Or sir. can you name some of the famous personalities of this particular mandala art, those who have, those who are associated with mandala art, if you know, in India, right? Okay, sir. So, I'll try to wait. yeah, try to find out all these things, right? Okay. Then the next hobby you are saying, that is Undertaking religious tours. that is also a very good one. But then you if you are ready with the set of questions and answers, then it is a very good one. Because whenever they ask you undertaking religious tours, so the next question would be what all religious places you have visited so far? Supposing this is a question. Now, if you say that only two places I visited in my life so far, so if it is a hobby, you have visited you undertake religious tours, so you have to convince them, or you have to make them believe that yes, it is genuinely my it's genuinely my hobby. So this is one part. And then of course they'll say that religious tour, what is religion, right? So again, if they ask you what is religion, so you should be able to tell them that this is religion. है ना? Then which particular fundamental right is associated with freedom of religion? Okay. Okay. Now this is the question. Okay, another hypothetical question will be like this. There is an area which is tribal dominated area or tribal inhabited area, and there's a religious place you want to go. Okay, whether you can visit that area or not. If yes, how? If not, why not? Okay. Right to fundamental right, है ना? Article 19, Okay. freedom of movement. There are certain Yes. reasonable restrictions you will see in your Yes, sir. polity. So, what all reasonable restrictions are there that Okay. you want to undertake a religious tour, but in certain areas you are not being allowed to do that. Restricted. Now, your Yes, sir. Article 19 is having a problem for your hobby, creating a problem for your hobby. Now, these kind of things might be asked, so be ready with some questions, for probable questions and answers. Otherwise, there is no Okay. harm in writing these hobbies, right? Okay, anything Okay. else? So I have actually been there multiple places like Ujjain, Ayodhya, and Banaras in past few years.
I'm Mm. tilted towards it since it gives me a peace of mind after hectic schedule. I'm not much into knowing the Mahabharat characters and everything. So will it be a problem that I get asked such question of deep religious questions? See, deep religious questions they won't ask, but basic elementary, level questions they might ask you, and they will expect that you will be able to answer them properly. Very elementary questions that they might ask, because when you go deep, it becomes a little bit philosophical. It becomes Yes, sir. hardcore, philosophical questions. So they might not ask those questions, but elementary questions might be asked. Sir, can you please give me an example such as You tell me the activities that you have done related to this, whatever you have mentioned right now, specific sir, such as activities. I attended Banaras Aarti, which is itself spiritual and it gives peace of mind. Mm-hmm. I am interested little bit in writing shloks such as morning chanting, etc. Not much into it, but yeah, I like to do it. Ah, yes. See, that is not a bad thing that you do. But say, for example, like, there may be a question like Banaras, one place, and Kurukshetra is another place. Yes, sir. When you talk about spirituality, Banaras is recognized by most of the people as a place where religious activities take place. But that way, Kurukshetra has not got the recognition. Yes, It sir. is primarily known for only this thing, Mahabharata. Why Banaras is such a known place for religious or spiritual activities? This kind of questions, a very general kind of questions. Okay, okay, okay. Okay, and there are Jyotirlingas in India. How many Jyotirlingas are there? 12, 12. Yes, in Banaras there is one. Yes, sir. Okay, there are other places in India where these rest of the Jyotirlingas are found. So, what all areas are there? The name, the places where other Jyotirlingas are found. So, you should be ready with an answer. Ki this will be my answer. Okay, that Okay. way. Got it. And why this place is such a holy place? What do you think about? What is your thought about it? Why this place is such a religious place? Okay. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और क्या क्या स्कीम्स हैं रिलीजन को लेके? डिपार्टमेंट जैसे रेलवे मिनिस्ट्री का कुछ ऐसा स्कीम है, वो रेलवे प्रोजेक्ट है जो रिलीजियस प्लेसेस को जोड़ने के लिए बनाया गया है ना? ये Buddhist circuit, Swadesh हाँ Bharat हाँ scheme. हाँ, ये सब आपके टिप्स में होना चाहिए, है ना? ये Okay. सब एस्पेक्ट्स है, ठीक है ना? Okay, और sir. बताओ। Sir, I wrote one article related to solar photovoltaic cells, the latest technology. During my college third year, in my college journal, annual journal was there. So, Mhm. may I mention it somewhere in this? Where will you mention it, right? Prizes, medals, scholarships, you have not won for that. No, sir. Sports, It was just NCC, an article. just an article. You can you can add here other extracurricular activities that interest in writing journals. Example, this. So Okay. they So, might but ask you that. Yes, yes, yes. I've written only one till Only one. only during. That is it. Yes, sir. So I think you can avoid that. Okay, okay, It's better to avoid, right? Okay. okay, sir. Anything Sir, else? Hmm. another one is actually prizes, award, scholarship part. I was not much into sports, etc., but I was into basic academics during my school days. So Hmm. I scored highest marks in economics during my 12th board exams. Can I mention it there on the first No, point? no, no, no. Because they are asking you to provide particulars at the university, state, and national level. Okay, 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 So sir. not school level. So you Okay. might avoid that. In C part, position of distinction leadership held in school and college, that you can do. There, if you have got anything, you can write.
Okay, sir. So can I mention this there? Is it a position? Sir, not particular position, but yeah, I scored highest marks in school, economic subject में That is during okay. 12th. See, position of distinction, leadership held in school and college. That is that okay. If you want to write, you can write, but again, that is not a leadership, but yes, that is something which you have achieved. Position of distinction, in a sense that you topped the in your exam, right? You can write, but that should be in C position, C part, Okay, sir. not A and B, right? So, what should I write at the first point? I do not have these things. Prizes, Prizes. medals, scholarship. No, no harm. Don't write anything. Keep it Okay, blank. No harm in it. okay, okay. And sir, I was a member of NSS during my college days. So, may I mention it in that sports Yes, NCC school part? and college have position of distinction, leadership. सर स्पोर्ट्स एनसीसी पार्ट में मेंशन करना है या पोजीशन और डिस्टिंक्शन में? आप इसमें करो पोजिशन ऑफ डिस्टिंक्शन, क्योंकि ओके वो तो एक लीडरशिप टाइप की हो गया ना। ये सर आई ऑर्गेनाइज फेस्ट आई वाज अ पार्ट ऑफ हाँ, मेंबर वही वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ओके क्या है और क्या क्वेश्चन? सर आई वाज अवॉर्डेड पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन जूनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ हिंदी लिटरेचर सोसाइटी in college, but the problem is I am not into Hindi literature. I am aware about only 3 4 poets. I do not read them. It was No only for problem. organizing fest. You can write, that is your, that was your position, right? That you can write. If they ask you to, you may tell them this, right now I'm not into, no, I'm not, this is not a hobby. This is just a, at that point of time you did it. It is not Okay, a hobby, so therefore there is no harm in telling this thing that right now I'm not doing all this stuff. Right? That you can okay, do. okay, sir. Okay. Right. Or anything else? So understood. So I work at SBI right now. It's been Mhm. 1 year I'm working there as associate. It's Mhm. clerical level. So, Mhm. sir, what questions can I expect from there? Most of the questions may come from your service experience only Okay, okay, sir. in your DAF. For example, एसबीआई तो है ही, एसबीआई के बारे में आपको पूरा जान लेना है कि Okay, कब ये नाम एसबीआई दिया गया है, इस एसबीआई का पहला नाम क्या था, okay. बैंकिंग Immediate सिस्टम के apply. बारे में, यस, बैंकिंग सिस्टम के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। Okay, कमर्शियल बैंक किसको कहा जाता okay, है ना? और इसको पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, जितने भी टाइप्स ऑफ बैंक है, मुद्रा बैंक, दिस बैंक, दैट बैंक, जो भी है वो उसके बारे में नॉलेज, नबार्ड के बारे में, आरबीआई का फंक्शन के बारे में, या छोटे छोटे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सीआरआर, एसएलआर, जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, तो yes, उसके sir. बारे में एक नॉलेज लेके जाना है। और जो काम आप करती हैं अभी, जैसे आप क्या करती हैं उस डिपार्टमेंट, उसमें बैंक में क्लरिकल जॉब Yes, sir. है ना, तो उसमें क्या? Customer dealing, customer services, हाँ हाँ, KYC compliance, account opening, multiple government schemes related such as NPS, PPF, Sukanya Samriddhi Yojana, वेरी all are गुड। related to customer ये सब account. आप उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज देके जाना है। जैसे बैड बैंक क्या है, अगर वो ये Yes, पूछते हैं कि एसबीआई में आप काम करती हैं, तो आप ये बताएं कि वहाँ का जो टोटल इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितने हैं, okay, है ना? okay. ऐसा कुछ नॉलेज आप अपने बैंक से, मतलब सीनियर से बात करके आप उसके बारे में थोड़ा लिख लेना, जान लेना, जो कि ये चीज उनको कन्विंस कर दे कि भाई दिस इज पॉसिबल फॉर अ कैंडिडेट हु इज वर्किंग इन दैट ऑफिस। वैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे से पूछेगा कि एनपीए क्या है, तो मैं बता दूंगा एनपीए क्या है। Okay. लेकिन अगर कोई ये पूछता है कि आप एसबीआई में टोटल एनपीए कितना है, मान लो सपोज ये क्वेश्चन है, तो ये तो वही Okay. बता पाएंगे जो वहाँ पे काम करते हैं। Work. तो ऐसा Yes, कुछ sir. इंफॉर्मेशन जो आपके लिए संभव है, मेरे लिए संभव नहीं है, वो चीज अगर आप उनको बताएंगे ना, तो वो दे विल गेट इम्प्रेस्ड, Okay, sir. है ना? Okay. ऐसा कुछ जैसे केवाईसी में ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जो भी काम आप कर रही हैं, या ऐसा कुछ डेटा जो संभव है आपके लिए बताना, अगर वो कर पाती हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा।
ओके सर, ये ओके, सब। अंडरस्टूड सर। और कोई क्वेश्चन? सर बस आई थिंक वही डैफ का पार्ट था। हाँ, तो अब मैं देखो आपको एक चीज बता देता हूँ। जैसे आपका जो नाम है श्रुति से लेके यस सर, यस सर, एकदम लास्ट में जो कुछ भी आपने लिखा है डेप्थ में, हर चीज के बारे में आप नॉलेज लेके जाना है। यस जैसे सर, यस श्रुति, सर। श्रुति का मतलब क्या होता है? Sir, revealed knowledge of Vedas, which were told by gods to rishis. तो ये रिटर्न होता है या सिर्फ Sir, oral, it's an oral oral? tradition. हाँ हाँ। तो आप इसी से कनेक्ट करके वो क्वेश्चंस बना सकते हैं, Okay, sir. है Okay. ना? तो अब जो भी आपके डैप में आपने लिखा है, जैसे आप वेस्ट दिल्ली के हैं, दिल्ली के आप हैं, तो दिल्ली के बारे में, जैसे खासकर दिल्ली का जो अभी का हालत है, पॉल्यूशन, एयर Yes, sir. क्वालिटी, Yes, sir. एनीथिंग, ट्रैफिक जैम, दिल्ली के जो Okay, प्रॉब्लम्स sir. है उसके बारे में हो सकता है। दिल्ली से रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो टसल बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट में होता रहता है, वो कि भाई दिल्ली को स्टेटहुड, कंप्लीट स्टेटहुड मिलनी चाहिए नहीं। आपका क्या ओपिनियन है, दिल्ली को स्टेट बना देना चाहिए या ऐसे ही रहने देना चाहिए, है ना? लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या काम है वहां पे दिल्ली में, वो क्या काम Okay. करते हैं ना? चीफ मिनिस्टर के साथ जो प्राइम मिनिस्टर का, मतलब सेंट्रल मिनिस्ट्री का जो रिलेशनशिप है, वो कई बार अच्छा देखने को नहीं मिलता है। उसके पीछे क्या कारण है? ऐसा कौन कौन से काम जो चीफ मिनिस्टर के पास वो लोग मांग रहे हैं बट उनको नहीं दिया जा रहा है? कौन कौन से एरियाज, जैसे मान लो पुलिस नहीं है, लैंड नहीं है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। दिल्ली का मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर हम Yes, स्टेट sir. बना देंगे तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? एज ए सिविल सर्वेंट थोड़ा सा डीप जाके आपको पढ़ाई करनी है ना? फिर Okay, sir. दिल्ली के साथ जो हिस्टोरिकल जो लिंकेज है, दिल्ली ये नाम एक्चुअली में क्या था पहले, हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे पुराने, जो इसका क्या नाम था, थोड़ा सा कनेक्शन Yes, sir. हिस्ट्री से, है ना? वो सब आपको लेना है ना? और दिल्ली में और भी जो इश्यूज हैं वो सब आपको बताना है। दिल्ली में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं आज के डेट में? 12, sir. हाँ, तो जो भी है मतलब वो सब आपको थोड़ा सा बता देना है। ओल्ड दिल्ली या Okay, न्यू sir. दिल्ली में क्या डिफरेंस है? एनसीआर किसको बोला जाता है? Okay, और sir. एनसीआर Yes. बोलने की वजह से दिल्ली को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। तो ये एरिया आपको देख लेना है, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे Yes, मेंशन sir. किया है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। फिर आप Yes, sir. इसमें आपके फादर का प्रोफेशन भी अकाउंटेंट है और आपने Yes, भी sir. बीकॉम ऑनर्स किया है, Yes, और sir. तो एक नेचुरली अकाउंट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, Yes, है sir. ना? अकाउंट से रिलेटेड, जैसे मान लो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है ना? Okay. प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या है? मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या Okay. है ना? जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है ना, शुरुआत में जो Basic एक दो जाना है, principles. एकदम Yes, sir. बेसिक्स में जाना है। Yes, sir. गोल्डन जो रूल है इसमें अकाउंट्स, वो क्या है? Okay, पर्सनल sir. अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट में क्या अंतर है? या मान लो वो पूछते हैं, बोलते हैं कि भाई फर्नीचर बॉट, तो इसका जनरलिटी क्या होगा? सिंपल Okay. क्वेश्चन, है ना? ये सब हो सकता है वो पूछे, ना भी पूछे, ये भी हो सकता है। फिर आपका जो स्टेट टू टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, झारखंड, योर मदर इज आल्सो फ्रॉम झारखंड, तो Yes, sir. आप झारखंड कभी गई हैं? So yes, मेरा रेगुलर विजिट होता है और माय ग्रैंडपेरेंट्स लिव देयर। आई वाज बोर्न इन झारखंड आल्सो। माय अपब्रिंगिंग इज फ्रॉम दिल्ली। तो अब अपना कैडर क्या लिया है आपने? सर मैं झारखंड? होम स्टे, नहीं सर, होम स्टे तो यही दिल्ली का ही अप्लाई किया है, जीएमयूटी वाला। अच्छा, तो मतलब वो ऑगमुट कैडर आप लेना चाहती यस हैं, सर। वहां नहीं यस जाना सर। चाहते झारखंड में? सर नहीं, ठीक है। फैमिली यहीं पे रिसाइड हाँ करती है हाँ, इसलिए। मतलब इसमें क्वेश्चन है, अब आंसर यस सर। आपको देना है, क्यों नहीं जाना चाहती हैं आप, है ना? मतलब आप, वो लोग आपको प्रोवोक करने के लिए बोलेंगे जरूर कि आप दिल्ली में रहना चाहती हैं, झारखंड के बारे में सोचती नहीं है, ऐसे कैसे होगा, आपको तो जाना चाहिए झारखंड में। आपको थोड़ा सा प्रोवोक करने के लिए, तो आपको तैयार रहना है उसके लिए आंसर, क्यों क्यों नहीं जाना है, क्यों जाना है, ये सब, है ना? तो ये एक एरिया हो गया। फिर मान लो जैसे मैंने बीकॉम ऑनर्स को तो मैंने बोल दिया, बीकॉम ऑनर्स में मतलब और भी जो सब्जेक्ट्स है, जैसे ऑडिटिंग है, थोड़ा बहुत उसके बारे में आप नॉलेज रखना, जो भी नॉर्मल जो नॉलेज है वो सब,
Yes, फिर sir. एकदम बेसिक्स। फिर आपका ये तो हो गया। सर्विस प्रेफरेंस में आपका आईएएस आईएफएस एंड इंडियन पुलिस सर्विस है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, जैसे आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहती हैं, आप तो ऑलरेडी बैंक में काम कर रही हैं, तो इसका एक Yes, sir. आंसर होना चाहिए, है ना। और कुछ भी बोलना है ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कभी भी जो जिस जगह पे आप काम कर रही हैं उसके बारे उसके अगेंस्ट में एक भी शब्द नहीं बोलना है, Yes, sir. उसके Definitely, अगेंस्ट sir. में जाके, है ना। जो भी बोलना है आप ये बोल सकते हैं कि सिविल सर्विसेज में डाइवर्स मतलब एरियाज है ऑपरेशन ऑपरेट करने का, डाइवर्सिटी है, दिस दैट, है ना। कैरियर प्रोग्रेशन है ना। टाइम बाउंड प्रमोशन होगा तो ऑब्वियसली कैरियर में हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है। मेरे पास ऑथोरिटी रहेगा लोगों के लाइफ में बदलाव लाने का। ये सब पॉजिटिव बातें ही आपको बताना है। कभी भी गलती से Yes, ये sir. नहीं बोलना है कि वहां पे काम करने का स्कोप नहीं है। बात वही है लेकिन बोलना नहीं है काम करने का Sir. स्कोप नहीं है, छोटा है, ये है वो है, ये सब नहीं बोलना है, ठीक है ना। ये Yes, सब माइंड में रख के आंसर देना है। बाकी उसके बाद तो ये सब तो आपका हो ही गया है। बस ठीक है। और बताओ, और कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो हम लोग बात करते हैं। Sir, may I link budget reading with banking, commerce, and accountancy? I'm planning to link all these three and study in a holistic manner. Budget, economic survey, if this my interview gets scheduled at February something date. बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड या आरबीआई के जो आप आरबीआई के साइट पे जाके Okay. आप उसको मतलब फॉलो करते ही रहना, मतलब क्या क्या हो रहा है वहां पे लेटेस्ट, Yes, sir. है ना। Yes, sir. और सिंस आप बैंकिंग सेक्टर में, तो बैंकिंग सेक्टर में देखना ये सीआरआर एसएलआर वगैरह ना चेंज होता रहता Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो प्रेजेंट रेट क्या है Okay. वो एज इट इज, मतलब जो है वही बताना है, ठीक है। आपसे Okay. शायद ये ना पूछे वो कि सीआरआर क्या है बताओ, क्या है ये नहीं पूछेंगे, शायद वो सीधा पूछेंगे सीआरआर क्या चल रहा है बताओ, Okay. है ना। ये Understood. एकदम, तो आप अगर वहां पे अगर फंबल करती है तो आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। फिर मेरे को उतना ही आता है सीआरआर क्या होता है, आपको भी उतना ही आता है सीआरआर क्या होता है। लेकिन सीआरआर क्या रेट चल रहा है वो उसी को पता होगा जो मतलब एक्सपेक्टेड है, जो उस Expected. पर्टिकुलर जॉब में है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और हाउ डू व्हाट इज अ बैंक, बैंक को कैसे डिफाइन करेंगी आप। Yes, तो sir. एक सिंपल डेफिनेशन आपको बना के चलना है, मतलब ये बताऊंगी अगर बैंक पूछेंगे तो, है ना। इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हो रहा है बैंक से रिलेटेड वो सब। और जैसे Yes. मान लो मुद्रा बैंक में जो लोन मिलता है उसमें कितने कैटेगरीज हैं, जो रिसेंट चेंजेस आए हैं मुद्रा बैंक के कैटेगरीज में वो क्या क्या है वो बताना है, Okay, sir. ठीक है। और Yes, बताओ। sir. Sir, I chose a different optional from my graduation. My optional is PSIR. If हम्म। I get a question asked from this that why I chose a different option, what should my be my proper answer? देखो आप मुझे ये बताओ कि प्रैक्टिकली क्यों आपने ये ऑप्शनल चूज किया है, एक्चुअल रीजन क्या है। So there were two reasons. One is the overlap with other subjects of GS, and the second one is I got interested into studying international relations while preparing for the UPSC exam. So I हम्म। took these. हम्म। और आपका एक्चुअल जो बैकग्राउंड में आपका तो ज्योग्राफी भी आपने पढ़ा है, नहीं मतलब So पीएसआई commerce और also. कॉमर्स, सॉरी। हाँ तो ठीक है, तो आप यही बताना जो आपने अभी बताया है। आप ये बोल सकती है कि बीकॉम जो कॉमर्स सब्जेक्ट में सर मैंने जो देखा है वो किसी मतलब जीएस में डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट बेनिफिट तो है हर सब्जेक्ट का। तो आप ये बोल सकते हैं कि सर डायरेक्ट बेनिफिट कॉमर्स का जो सब ऐसे अकाउंटेंसी है वो नहीं मिल पाएगा सर। एक तो रीजन ये है। ये पीएसआईआर का जो एडवांटेज है वो सर हमें जीएस में इंटरनेशनल रिलेशंस है और भी एरियाज है वहां मिल जाएगा, इंटरव्यू में मिलेगा सर। ये सब हो गया। सेकेंडली कि सर बीकॉम में पीएसआईआर के जो स्टडी मटेरियल है यूपीएससी स्पेसिफिक वो मार्केट में अवेलेबल है, पर बीकॉम ऑनर्स के Okay. लिए ऐसा स्टडी मटेरियल मार्केट में नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा वही ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है, स्पेसिफिकली नहीं है। थर्ड ये है कि सर पीएसआईआर में मैंने इसलिए लिया है कि अगर कभी ऐसा होता है कि मुझे किसी मेंटर का जरूरत है तो इजीली मिल जाते हैं।
बीकॉम ऑनर्स में सर मेंटोर मिलना या कोचिंग सेंटर्स मिलना जहां से हेल्प मिल सकता है, वो हेल्प भी ओके। नहीं मिलेगा, ये है। चौथा, आपका जो बोला आपने इंटरेस्ट एक फैक्टर है इंटरेस्ट। कि इंटरेस्ट मुझे मेरा डेवलप हुआ है। और फिर आप ये भी बोलना कि सर एक फैक्टर ये भी है कि पीएसआईआर और भी बच्चे लेते हैं, ज्यादातर बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे पीएसआईआर लेते हैं, यस तो सर। अगर कभी ग्रुप डिस्कशन करना पड़े, जैसे अभी मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ सर, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, अगर नहीं भी है तब भी बोलना कि कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानती हूँ जिनके पास पीएसआईआर है, तो हम लोगों ने बैठ के ग्रुप डिस्कशन वगैरह किया है, हेल्प एक दूसरे से मिल गया। बट बीकॉम ऑनर्स या कॉमर्स में ऐसे मेरे सर मतलब ये सब्जेक्ट उतना टेक्निकल है और बहुत कम बच्चे लेते हैं, तो वो ग्रुप डिस्कशंस वाला जो है ना इंटरव्यू स्टेज में, जिसका एडवांटेज है वो इसमें नहीं मिलेगा, उसमें मिलेगा। तो ये 4-5 पॉइंट 1 2 3 4 करके उनको बता देना कि दीज आर द रीजंस क्यों मैंने लिया है। ओके। ओके सर। ठीक है, ओके और बताओ। सर, एक क्वेश्चन अभी जैसे आया, व्हाई सिविल सर्विसेज एंड शिफ्ट फ्रॉम बैंकिंग? So may I हम्म, answer this like this? This is the genuine reason why I wanted to do. So एक authority मिल जाना so that I can empower others from a हम्म, position of authority हम्म, and to be able to use that resources for them. अब मैं हम्म। इसको रिफ्रेस करके कैसे प्रेजेंट करूँ जो ये अच्छा लगे? उनको ये बोलने में थोड़ा सा मतलब वो लग रहा है कि जैसे आप ऑथोरिटी के लिए आना चाहते हैं, आप ये बोलना कि सर जो बोथ दी सर्विसेज आर गुड, जो बैंकिंग में मैं कर रही हूँ वो भी बहुत ही बढ़िया सर्विस है, और जहाँ पे मैं जाऊंगी वो भी बहुत बढ़िया है। बट जब हम सर जब कंपैरेटिव स्टडीज करते हैं तो यहाँ पे डाइवर्सिटी है जॉब का, अलग अलग सेगमेंट्स में मैं काम कर पाऊंगी। एक तो ये है सर, ये जॉब बहुत ज्यादा डाइवर्स है, और ये जो बैंकिंग सेक्टर, तो आई बी रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू द बैंकिंग ओनली। तो सर ये सिविल सर्विसेज में डाइवर्सिटी ज्यादा है, एक तो ये डाइवर्सिटी फैक्टर। नंबर टू सर, ऑब्वियसली अगर हम मतलब करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों के पे पैकेज में डिफरेंस है या नहीं? डिफरेंस तो होगा, Yes, sir. आप क्लरिकल पोस्ट में और यहाँ सीधा क्लास 1। तो सर नेचुरली मेरे करियर के लिए आई बी गेटिंग अ वेरी गुड डिसेंट सैलरी, decent salary Yes, I'll get, which will which is a motivational factor for me, और ये फैक्ट भी है। और इसको 2025 में हम लोग उस टाइप के फिलोसॉफिकल आंसर नहीं दे सकते कि देश के लिए कुछ करेंगे। वो yes, 1947 में चलता था कि जब हम आजाद हुए थे, उस समय देश को बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब कहानी उस समय चल जाता था। आप आज 2025 में नहीं सुनेगा कोई, बोलेगा ये yes, बकवास रखो, सीधा बोलो। तो आप सीधा बात मतलब सीधा तो नहीं बोल पाएंगे कि मुझे पैसा ज्यादा मिलेंगे, आप इस तरीके से बोला कि करियर ग्रोथ सर बेटर है, क्लास 1 जॉब है, पे पैकेज अच्छा है, डिसेंट लाइफ पैकेज सैलरी वगैरह है, ये भी एक फैक्टर है सर। और थर्ड सर, जो लोगों के लाइफ में मीनिंगफुल चेंज ला पाऊंगी मैं okay, इस okay, फील्ड में, वो मीनिंगफुल चेंज लाने का जो स्कोप है वो ज्यादा है। ऑथोरिटी वर्ड मत करना यूज okay. लोगों के लाइफ में। जैसे मैं अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन के जाऊंगी किसी के वहां पे मोहल्ले में, मान लो मेरे डिस्ट्रिक्ट में पानी नहीं आ रहा है, तो मैं इस Yes, प्रॉब्लम sir. को सॉल्व कर सकती हूँ, और एटलीस्ट अपने हायर ऑफिशियल्स को या पॉलिटिकल मास्टर्स को ये मैं बता सकती हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम्स हैं, यही है Yes, सब sir. जिसकी वजह से मैं बनना चाहती हूँ, है ना? दैट विल मेक सेंस। आप अपने करियर के बारे में जरूर बोलना कि करियर एक नेचुरल करियर, एक बेटर करियर है, क्योंकि वो रियलिस्टिक लगता है सुनने में। नहीं तो लगता है कि Yes, sir. कहीं कोचिंग सेंटर या हो ना, जैसा हाइप होता है ना फिलोसॉफिकल आंसर्स की, देश के लिए जान दे देंगे, समाज के लिए कुछ भी करेंगे, फिर बोलेंगे अच्छा Yes, ठीक है, sir. तुमको हम सैलरी नहीं देंगे, आज बन जाओ आईएएस। काम करेंगे आप अगर सैलरी नहीं मिलेगा तो वो आपको Yes, बोलना ही sir. पड़ेगा कि नहीं। तो इसलिए वो शुरू में ही Yes. बता देना, 4-5 पॉइंट्स बताना, बट उसमें से एक ये भी बता देना। उससे Okay, तो sir. उनको लगेगा कि ये रियलिस्टिक आंसर है। नहीं तो बोलेंगे Okay. एनजीओ ज्वाइन कर लो, फिर अगर तुमको इतना ही करना है देश के लिए समाज के लिए तो एनजीओ में चले जाओ, मैं दे देता हूँ Yes, मदर sir. टेरेसा ट्रस्ट का फोन नंबर एड्रेस, Okay. इसलिए ठीक है। और बताओ और क्या क्वेश्चन है? Sir, leaving that position, the first part of 20th question, position, prizes, award and medal scholarships. Sir, अगर मैं उस पार्ट को छोड़ती हूँ तो वो empty तो नहीं लगेगा कि the सी person has not. देखो, मैं इसको इस तरीके से समझो, लिखने को तो कुछ भी आप लिख सकती हैं, Yes, sir. किसी किसी समय अगर आप एम्प्टी अगर आप रखती हैं उस स्पेस को, इट शोज योर ऑनेस्टी। Okay. Okay. जो
जहां पे जो मेरे पास है, जिसके लिए मतलब जिसके लिए मैं बोल सकती हूँ, और मेरे पास टेस्टिमोनियल्स भी है, सपोर्टिंग्स भी है, वो स्टैटिस्टिक्स भी है, Okay. प्रूफ भी मैं कर सकता हूँ, वो तो मैंने लिखा है। जो एक्चुअली है नहीं तो नहीं है। इट शोज योर ऑनेस्ट। अगर वो बोलते हैं कि है नहीं, हाँ सर आई हैव नॉट वॉन्ट एनी, तो आपको ना देखो, ऑनेस्टी अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप बताओ आप ऑनेस्ट हैं या नहीं, आप कैसे शो करेंगे? सपोजिंग क्वेश्चन ऐसा बना यूपीएससी में, तो आप बोलना कि सर कैसे शो करूंगी, आप मेरा देख लीजिए प्राइजेस, मेडल्स, अवार्ड्स, वो मैंने ब्लैंक छोड़ा है। Okay. इसका मतलब सच में मेरे पास नहीं, आई एम ऑनेस्ट अबाउट इट, है ना। आपके पास स्कोप बन जाता है ये प्रूव करने का। जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप दो ऐसे क्वालिटीज बताओ जो आपके अंदर है, जिसके वजह से मैं आपको सिलेक्ट करूं, तो आप बोलना ऑनेस्टी। क्योंकि फर्दर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कैसे प्रूव करेंगे ऑनेस्टी, आप बताओ श्रुति। तो आप बोलेंगे सर आप देखिए वो वाला 20th कॉलम, उसमें हमने ब्लैंक छोड़ा है प्राइजेस, अवार्ड्स वगैरह में। Okay. इट शोज दैट आई एम ऑनेस्ट। तो आपने प्रूफ कर दिया ना, तो आपके लिए स्कोप बन गया है। और जबरदस्ती लिखने का मतलब है कि वो स्कोप भी गया। Yes, sir. Yes, sir. उनको ना अननेसेसरी इंप्रेस करने का कोशिश मत करना। बी लिटिल हम्बल। इट Okay. शोज दैट यू आर हम्बल। जो नहीं है नहीं है, और जरूरी थोड़ी है कि तुमको मेडल लेके वहाँ, ये कॉमनवेल्थ गेम्स थोड़ी चल रहा है कि यहाँ पे Yes, sir. मेडल्स काउंट करे जाएंगे और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड मेडल मिलेगा, वो मिलेगा। जो नहीं है वो नहीं है। इट शोज इन ऑनेस्टी। वो लोग समझ जाएंगे कि दिस कैंडिडेट इज ऑनेस्ट। बाकी सब तो भर भर के लिखेंगे, 10 Yes, चीजें sir. 20 चीजें जो है नहीं वो भी लिख देंगे। तो इट शोज इन ऑनेस्टी। उनको अच्छा लगेगा ऐसे ऑनेस्ट और यंग ऑफिसर अगर सिलेक्ट होते हैं तो अच्छा है। डिसऑनेस्ट लोग और चाहते नहीं है, तो ये हो गया। ठीक है, और बताओ। Sir, I think my doubts are cleared. Helped a lot. ठीक है, आप अपने डेफ से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं पॉसिबल, वो सब Yes, बना sir. लें, Yes, sir. है ना। Thank you, sir. जितने It क्वेश्चन helped बन a lot. सकते हैं और फिर उसके आंसर्स डेवलप कर देना। और कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो हम लोगों को बताना, हम कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने का। ठीक है, Yes, sir. चलो Thank you, बेस्ट ऑफ sir. लक। Thank you. Thank हाँ you, बेस्ट sir. ऑफ लक। Thanks a lot. थैंक यू, थैंक Thank you. यू।